تو جموں کشمیر سے بڑی خبر پر لگاتار ہم بنے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں ایک اور ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ کشمیری پنڈت سنجے شرما کی آتنکوادیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی۔ پلوامہ کے اچھن میں یہ واردات ہوئی ہے۔ سنجے شرما ایک بینک میں گارڈ کے طور پر کام کرتے تھے۔ ٹی آر ایف نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر غم کا ماحول دیکھا جا رہا ہے، اور ایک اور بے قصور کی موت، ایک اور ٹارگٹ کلنگ۔ پھر سے ایک ٹارگٹ کلنگ اور سنجے پنڈتا کا بلیدان ہوا۔ لگاتار جو ٹارگٹ کلنگ چل رہی تھی اس پر روک لگائی گئی تھی اور سرکشا والوں نے کافی، لیکن پھر سے اس پرکار کی گھٹنا ہونا چنتا جنک ہے۔ سبھاوک ہے کہ ہم جو ایک نارملسی کی اور ہم بڑھ رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں آڑ آتی ہے، تو ان کے پریوار کے پرتی سنویدنا ویکت کرتا ہوں۔ ملیٹنٹ آرگنائزیشن لگاتار سترک رہتی ہے اور جو 40 سال سے ویکتی وہاں پر رہ رہا تھا اس کو نشانہ بنایا جانا دکھد ہے۔ جلد ہی ان لوگوں کو ڈھونڈ لیا جائے گا۔ پرشاسن اور سرکشا بل اپنا کام کرتے ہی ہیں، تبھی پہلے سے جو لگاتار پتھر بازی یہاں پر جو کیلنڈر جاری ہوتے ہیں ان پر روک تو لگی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پرشاسن پھر سے ایک نیتی چینج کر کے ان پر اپنا سنجان لے۔ کہ آج جو پلوامہ میں انسیڈنٹ ہوا ہے، ہم اس کی کڑی الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں اور ہم ان طاقتوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے یہاں کا بھائی چارہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم یہاں صدیوں سے رہ رہے ہیں اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ساتھ مل کے اس بھارت دیش کے لیے کام کریں گے۔ جو اس کی نندا کرنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور آپ کو بتائیں کہ پورو مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے بھی اس ٹارگٹ کلنگ کی سخت نندا کی ہے، ساتھ ہی ساتھ محبوبہ مفتی نے بھی اس کی سخت نندا کی ہے۔ ایک بار پھر سے ہم رخ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھی سمیر بھٹ کا۔ سمیر، لگاتار آپ کے ساتھ ہم بنے ہوئے ہیں اور آپ سے یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کا غصہ جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جب جن سے ہم نے بات کی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ کب تک یہ ٹارگٹ کلنگ، کب تک معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی؟ دیکھیے، اس میں کوئی ہندو یا مسلم کی بات نہیں ہے، یہ سبھی جو انوسنٹ ہے چاہے کسی بھی کمیونٹی سے ہے، ان کو جب مارا جاتا ہے تو یہ بالکل ہی کنڈیمنیبل ہے۔ اس کی کوئی بھی جو ہے اس کی جو جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، اور اسپیسیفکلی بہت زیادہ پچھلے اگر 2-3 سال کی بات کریں تو زیادہ تر جو مائنورٹیز ہیں ان کو وہاں خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اور نان لوکلز جو ہیں، جو باہر سے وہاں جاب کرنے آتے ہیں یا مزدوری کرنے آتے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور جو کشمیری پنڈت وہاں پہ امپلائیز ہیں یا ریزرو کیٹیگری کے امپلائیز جو جموں سے وہاں امپلائمنٹ کے لیے گئے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، چاہے ایجوکیشن میں ہو، چاہے فائنانس میں ہو، ریونیو میں ہو یا باقی سیکٹرز میں ہو، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں، جنہوں نے کشمیر نہیں چھوڑا، جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں ان کو کشمیریت پر وشواس ہے، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سینٹرل گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے، بہت دعوے ہو رہے ہیں، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن بھی کہہ رہی ہے، سیکورٹی فورسز بھی کہہ رہے ہیں، ایجنسیز کہہ رہی ہیں، لگاتار دعوے آ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹون پیلٹنگ کو ختم کیا، ہم نے وہاں کوئی ہڑتال نہیں ہوتی ہے، ملٹنسی کا گراف کم ہے، ملٹنٹ بہت سارے مارے گئے ہیں، جو آتنکوادی مارے جا چکے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے یہ کب تک بند ہوگا، کب بند ہوگا؟ اس میں سارے مارے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا، دھمکیاں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کا یوز کیا جاتا ہے، برابر یہ چیز چلن شروع ہوا۔ اور اگر ہم 22 کی بات کریں تو 22 میں یہ چلن بڑھا ہے، اور 23 میں اب پھر دوبارہ یہ فروری کے مہینے میں دوسرے مہینے میں ہی 26 تاریخ کو 26 تاریخ کو یہ کلنگ ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت جو سیکورٹی اپیریٹس ہے اس کو کس طرح سے ریویمپ کیا جائے، اس کی جو ایگزسٹنس اپیریٹس ہے ان کو کس طرح سے مضبوط کیا جائے، یہ سرکار پر ڈیپینڈ ہے، سرکار کو کرنا پڑے گا۔ سیکورٹی لوگوں کی، عام لوگوں کی سیکورٹی اور سیفٹی کو سنشچت کرنا سرکار کا دائتو ہے، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسی کلنگز نہ ہو۔ جو امن پسند لوگ ہیں چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے
मामले में वो किसी भी तरीके से इस जैसी किलिंग को सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी मजम्मत ही कर रहे हैं और हर कोई कर रहा है। असम से जो अशोक पारमू है जिन्होंने माइग्रेशन की थी, उनका ये कहना है कि संजय जो है वो एक गरीब लड़का था, उन्होंने उनको बोला भी था कि वो जम्मू आ जाए, यहाँ पे उनको काम सिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कश्मीर में रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो अपने नियबर्स पे, हमसायों पर भरोसा है, वो मेरी सेफ्टी करेंगे। लेकिन ये बात सही बात भी है, जब गोली आती है, जब बंदूक लेकर आता है, उसके सामने किसी की बनती नहीं है, सुनती नहीं है, ना उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। ये बड़ा कंसर्न है। और जो सेफ्टी वहाँ सिक्योरिटी के लिए लोगों को रखा गया है, माइनॉरिटीज के लिए, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जहां जहां माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए वहां पे पिकेट्स बनाए गए हैं और वो बहुत पहले से बनाए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये सिक्योरिटी पिकेट्स हैं, वहां कुछ पुलिस वाले होते हैं, वो एक ही मकान की सुरक्षा करते हैं, और जब ये जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने घरों में होते हैं तो उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी हो जाती है। लेकिन आप ये देखिए, इस हाल में भी राकेश पंडिता जो त्राल में रहता था, उसकी तब भी हत्या की गई थी, वहां सिक्योरिटी भी थी लेकिन तब भी उसकी हत्या कर दी गई थी। और अगर हम बंटू शर्मा देखें, राहुल भट्ट को तो अपने ऑफिस में ही मारा गया था, पूरन कृष्ण भट्ट को अपने बाग में जा रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। तो अगर ये बाहर निकलेंगे, उस टाइम सिक्योरिटी नहीं होगी तो उस टाइम उनकी किलिंग हो जाती है। तो ये एक बड़ा खौफजदा, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और वहां पे कश्मीरी पंडित तकरीबन 400 से 600 फैमिलीज वो हैं जिन्होंने माइग्रेशन नहीं किया, अभी भी वहीं पे रहते हैं। खासकर इस पुलवामा एरिया में भी, जो कि मिल्टनसी का बड़ा हिट एरिया है, बहुत मिल्टनसी ग्रस्त एरिया है, वहां पे भी टाहब हो, इस तरह तुमलहाल एरिया हो, गड़बुग एरिया हो, या जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं, वहां पे भी कश्मीरी पंडित, शुपियां में भी बहुत सारे कश्मीरी पंडित रहते हैं, बहुत सारी जगहों पे वो माइग्रेशन करके नहीं आए। आप देखिए अभी चूदरकुंड एरिया में जब पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या हुई तो उसके गांव के सभी लोग यहाँ पे आ गए, उनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला, उनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि कश्मीरी पंडित वहां रहे, गवर्नमेंट उनको कह रही है कि आप रहिए। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान नदमुस साकिब साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पीडीपी के। सर, आपसे फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहेंगे टारगेट किलिंग पर। देखिए, बहुत अफसोसनाक वाकया है सानिया है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू जो यहाँ पे थे, उनको टारगेट किया गया है, शॉट है। तो बहुत ही दुखद है ये, आम सिविलियन को टारगेट करना, जो निहत्ते हैं उनको, वो खास तौर पर एक कम्युनिटी में, मतलब जो हम देख रहे हैं कि एक इंतजामिया हम देख रहे हैं जो लगता है पैरालिसिस मोड में चली गई है और दिन दहाड़े एट विल लोगों को मारा जा रहा है। तो दूसरी जानिब हमारे कुछ वाइसरॉयज यहाँ पे है, या जो अभी यहाँ पे जो निजाम चला रहे हैं, वो लगता है कि कहीं गहरी नींद में है, ख्वाब गफलत में है, और ये बताना चाह रहे हैं, ये दर्शाना चाहते हैं हर जगह की जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्मल हो गया, जम्मू कश्मीर जो है ठीक हो गया, हमने अमन ला लिया, वी हैव एस्टैब्लिश्ड पीस। तो ये आई थिंक एक सानिया ऐसा बार बार जो अभी हमारे सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि सिचुएशन जो है अभी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर है, नंबर वन। नंबर सेकंड, आप देख लीजिए कि हर जगह हम तो थक गए अब मजम्मत करते हुए। कभी वो हरियाणा में जो हमारे 2 मुस्लिम भाई हैं उनको मौत के घाट उतारा जाता है, कभी हम देखते हैं कश्मीर में यहाँ पे जो है सिविलियंस की हत्या होती है। तो हम थक गए, हम कितनी कंडमनेशन करें, आखिर मुल्क में रूल ऑफ लॉ कब होगा? हम बार बार ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है पूरे मुल्क में डिडोरा करती है कि देखिए जी अब कहीं राइट नहीं है, कहीं ये नहीं है, बट हम जो रियलिटी है कि आज आप देखिए इंडिविजुअल सतह पे, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, यहाँ आपसे एक बात जानना बहुत जरूरी है। आपसे हम जानना चाहेंगे, सियासी बयानात तो लगातार जारी है, सियासी बयानात होते रहते हैं, लेकिन आखिर यहाँ पर एक मासूम की हलाकत हुई है, एक ऐसा इंसान जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर था, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि सरजमीन कश्मीर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं। तो क्या उनको इस तरह से सजा दी जाएगी? इसको तो कंडेम करना होगा। बिल्कुल, देखिए हमारी तरफ से कोई सियासत नहीं, हम जो है दो टोक शब्दों में इस चीज की मजम्मत करते हैं, बट सियासत कौन लोग करते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी है। पूरे मुल्क में मुसलमानों को आप देख लीजिए, आप 4 दिन ये चलाएंगे पूरा नैरेटिव, मुसलमानों को बदनाम करने की एक कैंपेन चलाएंगे, देखिए जी मुसलमानों ने टारगेट किया, बट कभी जब मुसलमान यहाँ पे कश्मीर में मरते हैं कभी उस पर डिबेट नहीं होता है, कभी उस पर बात नहीं होती है। आए दिन कश्मीरी सिविलियंस, कश्मीरी मुसलमान जो माइनॉरिटी के यहाँ पे लोग हैं,
वो उनकी किलिंग्स होती हैं। पूरे मुल्क में जो है, अभी आपने देखा हरियाणा में कैसे किलिंग। सर अगर हम बहुत ही आपसे मुद्दबाना गुजारिश है मेरी कि अगर हम इस टारगेट किलिंग की बात करें जो कि लगातार वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि अभी भी वहां पर ऐसी फैमिलीज हैं, हमारे साथी लगातार उनसे बात कर रहे हैं जिनमें खौफ देखा जा रहा है, उनमें किस तरह से हिफाजत का एहसास जगाया जाएगा? एक सियासी रहनुमा के तौर पर नहीं, एक कश्मीरी नौजवान के तौर पर आप बताइए। यहाँ पर हमारा दिल जो है वो दुखता है जब हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो पिछले 6 महीनों से सड़कों पे थे और अपनी हिफाजत के लिए जम्मू सिर्फ महज उन्होंने एक ट्रांसफर मांगी, और इस इंतजामिया ने, एलजी इंतजामिया जो एक डिक्टेटर के तौर पे काम करती है, उनको वो ट्रांसफर नहीं कर पाई जम्मू। उनको बोला कि आप अपनी जान की जो है बलि दे दो, मगर हम आपका ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, हम आपको जम्मू शिफ्ट नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि ताकि पूरे मुल्क में ये बेचे कि जम्मू कश्मीर में हमने 5 अगस्त के बाद अमन लाया है, जो हकीकत से परे है। आप देख लीजिए, आपने जैसे कहा कि एक मासूम न्याते इंसान को जो है मौत के घाट उतारा जाता है, और हुकूमत क्या हाथ पे हाथ धरे रहती है? आखिर कौन? देखिए, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ एज ए कॉमन कश्मीरी, मैं सिर्फ मजम्मत कर सकता हूँ इस इंसिडेंट की, बट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो हुकूमत का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आप देख लीजिए, पिछले 3 सालों से उन्होंने हर जगह रेड, हर जगह जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान जो जेलों में बंद है। अगर इतनी कत्ल लगाने के बाद, इतनी जो है दहशत मचाने के बाद, अगर अमन आपका तब भी नहीं एस्टैब्लिश होता है, तो अमन आएगा कब? सवाल तो करने हैं ना, कोई तो जिम्मेदार जी को तो जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों मर रहे हैं, आखिर ये क्यों अपनी जान की बलि देते हैं? आपने इनको जम्मू क्यों नहीं शिफ्ट किया? एलजी जो साहब जो 6 महीने, आपको याद होगा सुनील भट्ट वाला इंसिडेंट, 6 महीने से उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी थी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, सिक्योरिटी मांगी, क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? आखिर सवाल तो करना है ना। अगर आप ये बताएं कि मैं सवाल भी ना करूं और मैं चुप रहूं, तो बात कैसे बनेगी? ये तो फिर किलिंग कंटिन्यू हो जाएंगी। तो आज जो टारगेट किलिंग हुई है, एक बेकसूर को जिस तरह से मारा गया, अपनी फैमिली के साथ थे, इतवार का दिन है, जिस तरह से आम हिंदुस्तानी गुजारता है एक छुट्टी का दिन, उसी तरह से वो थे, उनको जिस तरह से मारा गया है, इसको किस तरह से कंडेम्ड करेंगे? क्योंकि आपके जरिए ये बात बहुत दूर तक फैलनी चाहिए कि किस तरह से वहां पर अब अमन की कोशिशों में सियासी पार्टियों से उठकर एक इंसान के तौर पर सब सामने आएंगे। कश्मीरियत में निहत्तों को मारना, ये हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हमने आज नहीं, हमने बारहा, हर बारी जहां पे हमें मौका मिले, जहां पे हमारी जरूरत हो बात करने की, वहां पे हमने इसके खिलाफ बात की है और ये कहा है कि ये कश्मीरियत से परे है, ये कश्मीरियत का खून है। ये सिर्फ जो आज वहां पे किलिंग हुई, ये सिर्फ एक सिविलियन नहीं, बल्कि कश्मीरियों जो न्याते से कश्मीरियत है, हमारी इंसानियत है, ये उसका भी खून है। और हम उस ज़मन में 12 बात करते हैं। मगर जनाब, आप हमें ये बताइए खुदारा कि हम आपसे सवाल करते हैं कि आखिर ये लोग कब तक, कश्मीरी पंडित कब तक अपनी जाने देंगे? आप क्यों नहीं कोई एक्शन करेंगे? यहाँ अमन आएगा कब? मेरा सिर्फ इतना सवाल है। देखिए, मैं तो कंडेमनेशन करता रहूंगा और मैं थक भी गया हूँ कंडेमनेशन करते करते, बट अमन आएगा कब? जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे नजमुल साक़ी साहब, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से बात करने के लिए, और लगातार इस बेहद अहम खबर पर जो तमाम तर रिएक्शन है वो हम अपने दर्शकों के सामने ला रहे हैं। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, फौरी हाजिर होते हैं। तो लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं, जिस पर अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि किस तरह से आज एक अहम खबर आई जम्मू कश्मीर से। पुलवामा में एक बैंक में काम करने वाले गार्ड की यहाँ पर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, और एक और टारगेट किलिंग, एक और कश्मीरी पंडित की हत्या। लगातार हर तरफ से इसकी निंदा की जा रही है। और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पर तमाम तर हालात जो है, हमारे तमाम साथी जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि संजय शर्मा बैंक गार्ड के पद पर थे तैनात, और आज इतवार का दिन था, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि रोज़मर्रा के कामों में वो मसरूफ़ थे कि आतंकवादियों ने ये निर्मम हत्या कर दी है, और टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है। लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं, तमाम तर जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, इसकी हम क्या कहूँ, मैं मजम्मत कर कर के हम थक गए। ये तो जो हुआ है, इसकी जितनी मजम्मत हो वो कम है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ जिन्होंने ये किलिंग की, कि अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में
दो, उनको दहशतगर्दी कहा जा सकता है, उन्होंने 2 मुसलमानों को जिंदा जला दिया। आज आपने यहाँ पर हमारा एक बहुत थोड़े बचे कुचे हमारे कश्मीरी पंडित, हमारे सरदार भाई, हमारे जो कश्मीरी स्पीकिंग हिंदू, ये जो बचा हुआ था, इतने सालों से ये रहा, कश्मीर छोड़ के चला नहीं गया, यहीं पर रहा हमारे साथ जीने मरने के लिए। आज आपने इसको मार दिया, तो फर्क क्या है? ऐसी हरकतें चाहे वो हरियाणा में हुई हो, चाहे यहाँ हो रही हो, इससे एक पार्टी को के जो एजेंडा है उसको फायदा होता है, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ नाकाम हो गई। यहाँ की जो माइनॉरिटीज बची कुची थी पिछले 30 साल से, उनकी जान को हिफाजत देने में वो नाकाम हो गई, और उनका इस्तेमाल करती है वो जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी दिखाने के लिए, उनको कुर्बान कर रही है वो नॉर्मलसी दिखाने के लिए। और जब ऐसे हादसात होते हैं तो वो लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं, पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करके, देखो जी मुसलमान कैसे हैं। तो मेरा यही कहना ये बहुत बुरा है, और मेरी जो तमाम हमदर्दी है इस खानदान के साथ है, और अल्लाह ताला सबको अक्ल बख्शे, और जिन्होंने ये किया है मैं इस एक्शन को पूरी तरह से इसकी मजम्मत करती हूँ। ये हमारा कश्मीरी कल्चर नहीं है। हमारे पास अब बचे कुछ लोग बचे हैं, कशीर बाटकस्तांश, कुछ सरदार, कुछ ये हिंदूज जो यहाँ कश्मीरी स्पीकिंग ये बचे हुए हैं, इनको भी इस तरह रोज रोज निशाना बनाते हो तो क्या हासिल क्या होगा? इससे कुछ हासिल नहीं होगा। गवर्नमेंट फेलियर समझती है इसको? बिल्कुल गवर्नमेंट का फेलियर है, बल्कि फेलियर ही नहीं, वो इस्तेमाल करती है इनको यहाँ पर, इनकी मौजूदगी को वो दिखाना चाहती है यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और जब इनको टारगेट किया जाता है तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को बदनाम करती है। तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीरी पंडित लीडर उत्पल कौल जी। उत्पल जी, आपका बहुत हम यहाँ पर इस्तकबाल करना चाहेंगे। और एक कश्मीरी पंडित की आज फिर निर्मम हत्या की गई है, वो भी उस मासूम इंसान की जो कि एक आम इंसान था, जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये एक कश्मीरी पंडित का ही कत्ल नहीं है, ये एक इंसानियत का कत्ल है, और मैं इस इंसानियत के कत्ल को बहुत ही मजम्मत करता हूँ। और मुझे लगता है कि पूरे कश्मीरी अवाम को और पूरे हिंदुस्तान को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। एक गरीब माइनॉरिटी जो अब कुछ फैमिलियां कश्मीर में बची हुई हैं, और उसमें भी अगर किसी का कत्ल होता है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त मेजॉरिटी कम्युनिटी कश्मीर की जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो खड़े हो जाए और वो कहें कि ऐसे शिकस्त खुर्दा लोग हैं, इनको आइसोलेट करना चाहिए। और मुझे पूरी हमदर्दी है, हम में से जितना भी हो सकता है हम इस फैमिली को हेल्प करना चाहिए, और इस दुख की घड़ी में पूरा मुल्क इनके साथ है, पूरी कौम इनके साथ है, और पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इनके साथ में। उत्पल जी, एक कश्मीरी पंडित लीडर होने के नाते इस तरह की निर्मम हत्याएं अब बंद होनी चाहिए, एक सख्त आवाज आनी चाहिए। क्या कुछ करना चाहिए इस डायरेक्शन में? किस तरह की आप मांग करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले डिमांड करना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार को कि वो इसका पूरी तरह से छानबीन करे, और जितने भी दहशतगर्द हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, उनको रोका जाए, उनकी धरपकड़ की जाए, ताकि ऐसा किसी का इंसान का फिर से कत्ल न हो। और खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब तो कुछ फैमिलियां बची हैं, कुछ लोग बचे हैं, और उनका भी कत्ल होगा तो पूरी दुनिया क्या सोचेगी? पूरे ये तो बहुत मुझे इस वक्त बहुत मैं दुख में हूँ, बहुत ही सदमे में हूँ कि एक गरीब ये अछंद का जो कश्मीर से निकला भी नहीं था, एक सिक्योरिटी गार्ड पर गोली मारी है। ये पूरा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बहुत ही दुख में है कि मतलब इस तरह से ये कत्ल हुआ है। बिल्कुल उत्पल जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देखते रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इस कॉज के लिए लगातार लड़ती भी रही हैं। कल ही हमने देखा था कि दिल्ली में किस तरह से एक कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें भी इस तरह की आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी।
आज ये जब घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं सबको सोचने पर मजबूर कर रही है। अब सियासत बस करें, सिक्योरिटी की बात करें, लोगों की जान की हिफाजत की बात करें। हम तो पहले से ही बताते हैं कि ये इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और सरकार को पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उसको मतलब एक्शन लेनी चाहिए। और मैं फिर बोलता हूं कि कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और दहशत गर्दों के खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पूरी कश्मीर की कौम पर ये दबा लगेगा और पूरे कश्मीर पर ये दबा लगता है कि जब एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के एक गरीब आदमी पर कत्ल होता है तो ये कितनी दुख वाली बात है। बिल्कुल सर, और एक जिम्मेदार शख्स के तौर पर, समाज के एक बाशऊर शख्स के तौर पर एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे, अब इस तरह की निर्मम हत्याओं को बंद होना चाहिए, सबको मिलकर साथ आना चाहिए। आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें की जाएंगी? मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि मतलब कितना खून बहेगा कश्मीर में जी। हमको एकदम से ये जो कत्ले आम का जो हमने पिछले 33 साल से देखा है, जिसको एकदम से बंद होना चाहिए और कश्मीर को पीस और प्रॉस्पेरिटी की ओर लगना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से टूरिज्म और बाकी बातें हो रही हैं, बाकी डेवलपमेंट की बातें हो रही है, अगर इस हिसाब से वहां पर कत्ल हुआ तो कौन कश्मीर आएगा। इसमें कश्मीर का नुकसान है, इसमें कश्मीर का आवाम का नुकसान है। और हम कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कश्मीर से हैं और एक ना एक दिन हम कश्मीर जरूर आएंगे और जल्दी से जल्दी आएंगे कश्मीर में। जी उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। बेहद कीमती वक्त आपने यहाँ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर को दिया है। तो हमारे साथ मौजूद थे कश्मीरी पंडित उत्पल कौल जी, जो कि इस निर्मम हत्या की सख्त निंदा कर रहे थे और लगातार हर शख्स यही कह रहा है कि बस अब इस तरह की जो बेकसूर हत्याएं हैं उनको बंद होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो बात की जा रही है टारगेट किलिंग्स की, उसकी तरफ अब सभी को मिलकर खड़े होना होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं संजय, जिनकी बड़ी ही क्रूरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई है मिलिटेंट के द्वारा, उनके परिवार के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, वो शहीद की मौत मरे हैं और हम सब उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। अगर हम बात करें कि ये चीज़ें रुक क्यों नहीं रही हैं, एक बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा। सिलेक्टिव किलिंग मैं इसको बोलूँगा, टारगेट किलिंग नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक माइनॉरिटी के जो कश्मीरी है, जो वैसे ही वहाँ पे 90 में जब इनका जेनोसाइड हुआ था वहाँ से भागे थे, इनके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं। और आज ये जो सिलेक्टिव किलिंग की जो परंपरा है ये अभी भी जारी है। हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुई है और वो सच भी है कुछ हद तक, लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है तो वो बात नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो नागरिक हैं और ख़ासकर जो लोग वल्नरेबल हैं, कश्मीरी पंडित जिनको एक स्पेशल पैकेज के अंदर वहाँ जॉब दिया गया है, उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करें। और अगर आपको ये भी पता होगा कि जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय थे उनको अभी पे मिलना भी बंद हो गई है, क्योंकि उनको वहाँ पे अपनी जान का खतरा है और किसी भी नागरिक की जान के खतरा करने की जिम्मेवारी जो है वो स्टेट की है और उसको वो डिसोन नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है जिसका हमें काउंटर करना पड़ेगा। हम सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम कर दें वो काफ़ी नहीं है, हमें अपने घर को भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्स, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे लोग, ये सब जब इकट्ठे होके आएंगे तो तभी इस समस्या का एक ग्रेटर डिग्री तक जो है समाधान है वो पॉसिबल है। ये आज लगभग 9:30 बजे के आसपास हुआ। सब लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आ गई तो लोग दौड़ पड़े और वहाँ देखा ये संजय कुमार हमारा भाई जो था, उसको गोलियां लगी थी। फिर जल्दी से उसको हमने पुलवामा शिफ्ट किया, तो लेकिन बदकिस्मती से ये रास्ते में ही दम तोड़ बैठा है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का और हम कंडम करते हैं इसको, जिसने भी ये किया खून नाह किया। ये बेचारा गरीब था, इसके 3 बेटियां हैं और बहुत गरीब आदमी था।
ATM में काम कर रहा था, थोड़ा सा गुजारा हो रहा था इसका, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने उसको मार डाला। जिसने भी उसको मार डाला वो दहशतगर्द है, वो इंसान नहीं है। इस बेगुनाह को उसने गोली मारी तो अल्लाह ताला उसके साथ बहुत बुरा करेगा जिसने भी ये काम किया। हम पूरे गांव के लोग इस गम में शरीक है। ये हमारे भाई थे, आज ये ना कभी जम्मू गए न ये यहाँ से चले गए, ये हमारे साथ रह रहे थे, घुल मिल के भाईचारा था हमारा अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से आज हमको दागदार कर दिया किसी दहशतगर्द ने। जिसने भी किया, जिस किस्म का वो आदमी है, जिस तंजीम के साथ है, चाहे वो कोई भी है, हम उसको बोलते हैं आपने एक खूनी नाहक किया, अल्लाह आपके साथ बुरा करेगा, अच्छा नहीं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार इस अहम खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।